Morning, sir. Morning. All set, 11:30. हाँ, So today is our sixth series, webinar series 6. right. आज सर कुछ चेंज लग रहा है, क्या हुआ? समथिंग इज चेंज, कुछ चेंज है, क्या? पता नहीं क्या चेंज है। नमस्कार, नमस्कार। क्या चेंज लग रहा है? ब्राउन शर्ट पहनी है आज व्हाइट की जगह। तो भी है। मूछें बढ़ गई हैं। हाँ, थोड़ा सा का- भारीपन सा लग रहा है, चेहरा भारी लग हाँ, काटनी पड़ेंगी, काफी दिन हो गए। रहा है। हाँ, अब तो सर बार्बर भी खुल गए। अब बार बार जा नहीं सकते ना बार्बर के पास। यूज ट्रिमर। हम्म, बिल्कुल। इसके बाद सर व्हाट वी आर प्लानिंग कि नेक्स्ट जो वेबिनार होगा दैट विल बी ऑन इंडस्ट्री बेस्ड। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेते हैं उसमें। ओके। और देन आई होप वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, मतलब फॉर नेक्स्ट 3-4 सेशंस विल टेक वन इंडस्ट्री एंड देन विल गो अहेड। राइट। एक एक करके इंडस्ट्री पकड़ते हैं। ठीक है, डन। तो इसके बाद जैसे हमारा 12 सीरीज का था, तो हम 12 को एनालाइज तब भी कर लेंगे कि हाउ मच पीपल वी हैव इन ऐड इन, और उसमें कितने लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। ओके। तो अभी केईसी का भी हम लाइव कर रहे हैं, उसमें केईसी में आज गौतम सर से बात हो रही थी काफ़ी। हम्म, और तो उसमें बेसिकली क्या है कि हम लोग फॉर पीपल सोशल मीडिया को पूरा कवर अप कर दें। राइट। तो उसमें लोगोज एंड ऑल विल फ्रीज करेंगे सर, उसमें डिस्कशन करेंगे और बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गौरव मॉर्निंग, सर, मॉर्निंग। गौतम सर, जितेंद्र, विवेक। we'll only start within 2-3 minutes, so I'm just getting it on live Facebook. हेलो हेलो, हाँ बोलिए। किससे? अभी बाद में आता है, अभी आई मीन समवेयर इन वेबिनार। ओके। Gautam sir, your background music is coming. सो बारिश का मौसम है। आई थिंक बेस्ट थिंग इज ब्रेड पकौड़ा टुडे। गौरव सर, साइकिलिंग शुरू कर दी? लास्ट टाइम यू सेड कि शुरू करने वाला हूँ बस। बस शुरू कर दी है, 2 दिन चलाई है थोड़ी थोड़ी। We're just starting now with our ओके। webinar series. या वी आर नाउ लाइव। Yeah, we are now live, and let's start today's session with blessings of rain, and let's close this session with a franchise benefits, more and more benefits, profitable thing. And in the last 5 series, we have discussed various aspects of franchise, wherein we have covered all that integrity, that the profitability models, different business models, industries, as well as how important is franchise. So today's session is basically a summary of all that inputs we have discussed. And now today we are talking more on profitable thing, because the scenario is like wherein franchisee business is no more a traditional business. It is a very specialized business where you need a professional support, as well as you need, the parameter has to be compared
before choosing a right franchise. Let's start today's session. And today's session, we are having our panelists today with us. So I'll start with Gaurav sir, Gaurav Kapoor sir. There is a small introduction in the beginning, and then we'll take up few questions and discussions on that. Gaurav Kapoor sir is a CA professional, and he's heading NSDC as Industry Partnership and CSR Engagement. He is also responsible for the business development, operation, financing, and advocacy to set up demand-driven greenfield skill development institutes and upgrade brownfield areas to CSR. So he has a very wide experience in understanding the potential of the market as well as the difficulties which people generally fail in the beginning. So welcome Gaurav sir. Next our panelist is Shri S.K. Gautam. Gautam sir is a seasonal professional in the agri industry. He is serving from last 29-30 years, and he has worked with the various MNCs and Indian companies at responsibility with the different roles and responsibility. And the various organizations are Morgappa Group, National Bulk Handling Operations, Ranbaxy, M&M, and Aditya Birla Groups. So welcome Gautam sir. Today we are expecting to, in the franchise thing in the agri industry, which is a now core focus of the government as well. Central government is focusing more. In fact, few days before I came across with an article from UP. They wanted to triple their economy as a state economy to 2 trillion. So they are, seeking proposals from the TMC companies. So today we are expecting, good inputs from your side. Welcome, Gautam sir. Next panelist we have Ashish Kaushik. Ashish Kaushik is a founder with Rigrob, and he is also a franchise expert. He has been very passionate, and he is a growth hacker, and he has been very keynote speakers in the various organizations, and he is also mentor to few franchise as well as new startups. He has been a very active member, and he's also IMI alumnus also, and he's a frequent visitor to many organizations. And he has worked on specialized projects like taking care of that growth thing for the startups, and he's been the very key role person into that. So welcome Ashish ji. Since you are a franchise expert, so this session is core based on you, and we are expecting few good output from your side. Welcome Ashish ji. And now we are moving to next panelist, Mr. Vivek Raman. Mr. Vivek Raman is very dynamic and young entrepreneur. He is co-founder at Rigrob, and he is a IT enthusiast person, and he is also running 50 successful franchises across the country, which is a big number as such, because these are all franchises which are earning more than 1 million in a year. So welcome Vivek ji. Today this session is the core depend on the franchise business, and we are talking and we are targeting profitability out of that. So let's start this session. So today we have few important point to be discussed. The first point that I am raising today, because today Gaurav sir is available for a very short time. So I will be taking few questions in the beginning with Gaurav sir, and then after Gaurav sir we'll be having question answer session. Also we'll be taking few questions from the audience attendees so that they would get the insight of it. So Gaurav sir, I'll be coming first to you, and the first question will goes like, in the first changing environment, how a person should go about starting his or her first business? Gaurav sir. Good morning everybody. I think it's I'm glad that I'm back here on this edition of the question answer webinar on franchisee. So I think the first and foremost thing जो आपको देखना है अपने कोई भी नए बिजनेस को शुरू करते हुए, चाहे वो फ्रेंचाइजी बिजनेस हो या नॉर्मल कोई भी बिजनेस हो, 3-4 चीजें बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती हैं इसमें। तो पहली चीज तो आपको आपका पैशन किस फील्ड में है। जहां आपके काम के साथ आपका पैशन जुड़ जाता है तो वहां पे आपकी एनर्जी लेवल बहुत अलग हो जाता है और चीजों की सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है। दूसरा जो हमें इसमें देखने वाली बात है कि कोई भी बिजनेस करने के लिए जो पूंजी लगाने की जरूरत है, वो पूंजी हम कहां से रेस करेंगे, कैसे रेस करेंगे और कितनी पूंजी चाहिए।
जब ये दो चीजें हमने देख ली कि हमारा आइडिया, पैशन क्या है और पूंजी अरेंज हो गई, उसके बाद आता है उस आइडिया को एनालाइज करना, उस बिजनेस को डिटेल में जाके उसका बिजनेस प्लान और उसका सब अपनी तरफ से बनाना और उसको स्टडी करना, उसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देखना कि वो बिजनेस कितनी देर तक हम चला पाएंगे, इस बिजनेस में किस तरह की चीजें आ सकती हैं उनके बारे में पहले से जान लेना, और ये सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ आपकी स्केलेबिलिटी कि जब ये बिजनेस बढ़ना शुरू होगा तो इसको बढ़ते हुए को हम कैसे कंट्रोल करेंगे और कैसे इसको और बढ़ाने में मदद होगी, क्या फैक्टर्स आ सकते हैं, तो वो स्केलेबिलिटी जरूरी है देखना। तो ये 3-4 चीजें जो हैं, ये कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आदमी के लिए बहुत जरूरी है कि वो ये देख ले कि किस तरह से उस बिजनेस का सब रहेगा। तो ओवर टू यू जितेंद्र। So in summary, sir, you have talked about the 4 points. One is the passion that which drives the business basically, and then you are talking of fundraising, which is a core part, and we have taken a dedicated session for that also in the past. So then the third point is long-term scalability and sustainability. So these are the 4 factors as per you. It is the very much important for making this franchise as a first business and making it profitable. Thank you, sir. These are the very important points. So I request all that participants should take care and should write these things, because sometimes we listen a lot, but definitely we lose somewhere. Gautam sir, I'll come to you. Would you be taking the same parameters, or you have some addition to it? The question that we have asked in the beginning. गौरव सर ने काफी चीजें तो जो हेडलाइंस जो है वो सारी उन्होंने बताई हैं, एंड दैट इज वेरी ट्रू विद द अपकमिंग बिजनेस, और यदि कोई आना चाह रहा है बिजनेस में, उन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और ऐड कर सकता हूँ उसमें। एक तो टेक बेस्ड यदि कोई बिजनेस हो तो ज़्यादा अच्छा है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन हो। इवन आप देख लिए जो छोटे छोटे जो मैं एग्री और फूड सेक्टर की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑटो सेक्टर और एरोनॉटिकल्स, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। इस छोटे सेगमेंट में एक फूड डिलीवरी और फूड रिक्वायरमेंट डेली नीड्स है। इसमें यदि कोई फूड और एग्री सेगमेंट में आना चाहता है तो उसको टेक बेस्ड होना जरूरी है। कहीं ना कोई इवन मैं देखता हूँ कि मार्केट में या सोसाइटीज में छोटे छोटे वेजिटेबल ग्रोअर्स हैं, दे आर आल्सो ऐप बेस्ड। वो ऐप प्रोवाइड करते हैं, यू कैन मेक द ऑर्डर, यू कैन गेट द थिंग्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिल्क बास्केट या बिग बास्केट, उनके अलावा भी कई छोटे इंटरप्रेन्योर इस चीज में इंटर किए इन लोगों ने, और छोटे सेटअप के साथ वो काम कर रहे हैं। तो वन कैन स्टार्ट। और रहा कि जो एग्री सेगमेंट में काफी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज भी, बहुत टेक बेस्ड फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज, इंटीग्रेटेड फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। कि इसी का जैसे मैं देख रहा हूँ मार्केट में काफी किसान एक्सपीरियंस सेंटर का भी हो रहा है, क्योंकि ये पूरा सप्लाई चेन लेके चल रहे हैं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी टेक बेस्ड हो तो ज्यादा अच्छा है, जो मैं यही ऐड करना चाहता हूँ। Thank you, Gautam sir. As per you, the tech-based, the product can be the the options for franchisee to choose. So we'll take this tech-based as one of the more important factor here. And then I'll move to Ashish ji. Since you are a franchise expert and we are talking of getting the right approach for the first time startup franchisee. So what is your view, sir? Ashish ji. Thank you, Jitendra, for asking me to be on this panel. Yeah, देखिए जब भी कोई इंसान कोई अपना फर्स्ट बिजनेस शुरू करता है तो उसकी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम, या तो वो पढ़ के आ रहा है या फिर उसने कुछ साल जॉब की है, नाउ ही इज मेकिंग ट्रांजिशन टू ए बिजनेस, एन एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही इज कमिंग इनटू। So there are two important constituent of starting a business. पहला तो आप हो, क्योंकि आप खुद बिजनेस कर रहे हो, और दूसरा वो जो बिजनेस जो आप जिसके साथ आप शुरू कर रहे हो। So I would say that first prepare your mind, have clarity कि आप क्या करना चाहते हो, make a very good solid plan। और ये solid plan बनाने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी क्लैरिटी की कि आपका स्ट्रेंथ्स क्या है। तो you should do on a very simple level, you should do a SWOT analysis of yourself as well as the business you are choosing. SWOT is
universally known as strength, weakness, opportunities, threat analysis of your own personality plus the business. Then you should find the right opportunity. आप ये देख लेंगे कि आज ट्रेंड सभी चल रहे हैं, क्या बिजनेसेस आपके लोकल इकोनॉमी में क्या बिजनेस की जरूरत है. एंड गौतम सर ने टेक की बात की, तो क्या इंटरनेट आपके बिजनेस को सपोर्ट करता है. तो ये सारी चीजें आप देख लें. देन आपको फिट्स भी देखने जरूरी है कि आपकी जो नेचर है, क्या बिजनेस को स्ट्रेटेजिक फिट है. लेट अस टेक ए सिंपल एग्जांपल कि आप चाहते हो कि मैं 2 साल में आई वांट टू बाय बिग कार्स लाइक मर्सिडीज और ऑडी, और आप बिजनेस शुरू करते हो चाय की दुकान का, तो आपको 1 लाख रुपए बनाने के लिए 2 रुपए पर चाय के हिसाब से 50,000 चाय बेचनी पड़ेंगी. तो वो आपका स्ट्रेटेजिक फिट मैच नहीं होगा. पैसा तो आपका थोड़ा बन जाएगा लेकिन स्ट्रेटेजिक फिट मैच नहीं होगा. देन ऑपरेशनल फिट. अगर आप बैठ के काम करना चाहते हो और आप ऐसा बिजनेस चूज कर लेते हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा डोर टू डोर सेलिंग या आउटरीच बहुत ज्यादा है, वो भी आपके बिजनेस फिट नहीं होगा. मैं आपको एक जेन्युइन एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले हमारे मेरी कंसल्टेंट कंपनी है, वो एक आउटरीच प्रोग्राम B2B सेल्स का देती थी. तो एक टीचर थे जिन्होंने हमेशा से टीचर रहे, 20-22 साल टीचर की जॉब की. ही वाज ए डायरेक्टर इन इंजीनियरिंग कॉलेज. ही टुक द फ्रेंचाइजी ऑफ दैट कंपनी. वो फ्रेंचाइजी लेने के बाद उन्हें पता चला कि यार मैं तो आई वाज ए टीचर, आई वाज इन ए रिएक्टिव टीचिंग जॉब जिसमें मैं कभी कहीं जाता नहीं था ज्यादा लोगों से मिलने. एंड नाउ कमिंग टू ए कोर्स सेल्स रोल, तो ऑपरेशनल फिट उस तरीके से नहीं हो पाया. इम्पोर्टेंट अगेन फाइनली गौरव सर ने बताया कि आप पैसा कहाँ से अरेंज करोगे. तो मैं थोड़ा सा उसमें एड ऑन ये करना चाहूंगा कि आप ये भी देखेंगे पैसा कहाँ से अरेंज होगा और वो पैसा कितने समय में वापस आ जाएगा. पूरा ध्यान उस पर अपना फोकस करें. आप एक थोड़ा सा अकाउंटेंट्स या सीएस की तरह थोड़ा सा बिजनेस प्रपोजल को मेजर करें, कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा आएगा. सो दीज एक्सरसाइजेस विल हेल्प यू अ लॉट इन स्टार्टिंग योर फर्स्ट बिजनेस. So you mean to say the operational fit, market fit, and in the beginning business plan should be taken care of. Yes. So these are I expect the panelists that you should come up with a small tagline. So because people generally we got queries in the end, like they are getting all things in one book. So can we have few specific examples of that also in the end of this sessions? So Ashish ji, I'll give this responsibility to you to come up with few examples when we'll be taking the last questions in the session. Thank you. Vivek ji, the same questions and expecting a practical view on this. Yeah, good morning all of you, and thanks Jiten. You are doing such a wonderful job, and you are bringing a lot of entrepreneurs to share their experiences to those people who actually want to start business or those who are into business. मैं अपने I'll start with this कि मैं अपने छोटे से फेलियर से स्टार्ट करूंगा. बिकॉज देखिए, जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में 2-3 चीज आती है. जो सबसे पहली चीज आती है आइडिया क्या है. एंड वी स्टार्टेड जंपिंग कि आइडिया, यार मेरे पास बहुत फैंटास्टिक आइडिया आ गया है, एंड मेरे पास प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा आ गया है. एंड द थर्ड थिंग इज लेट्स ओपन अ ऑफिस. सो दीज 3 थिंग्स व्हिच वी सी, एंड हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं. बट इसके बाद की चीजें हम नहीं देखते हैं कि व्हाट इज ऑल अदर रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बाद की चीजों की रिक्वायरमेंट क्या है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट फेल्ड बाय ऑल दीज 3 पॉइंट्स. even my first business was failed because of these 3 points only. And जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी टीम कौन सी है, जो लोग हैं आपके साथ में, या आप खुद भी काम कर रहे हो, आपके दोस्त यार है आपके साथ में जो आपकी पार्टनरशिप है या कुछ भी है. क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट जो आप बेचोगे वो लोग ही बेचेंगे, वो टीम होगी, वो एग्जीक्यूट करेगी. That is very important factor. Second, which is very important, is the opportunity. Market कितनी बड़ी है, whether you are making a product which is for the masses. बिकॉज मैं अभी जो बिलीव करता हूँ, मैं एक बहुत बेसिक जो धंधे वाली बात करता हूँ. अगर आप बात करो धंधे की बात, तो 2-3 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, विच आई लर्न फ्रॉम गौरव सर इज वेरी सीनियर टू अस. जिससे गौरव सर हमेशा बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान. दीज आर द बेसिक बिजनेस है जो कभी भी डाई नहीं करेंगे इन एनी ऑफ द केसेस, वेदर इट इज अ प्री कोविड पोस्ट कोविड. बिकॉज घर बिकना है तो बिकेगा, रियल एस्टेट बिकना है तो बिकेगा, एग्रीकल्चर है, खाना खाना है तो खाना ही होगा, कपड़ा है तो कपड़ा बिकेगा ही बिकेगा. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हम देखते हैं कि पोस्ट कोविड में लोग बोल रहे हैं बिजनेस, कौन सा पोस्ट कोविड बिजनेस किया जाए. मोस्ट ऑफ द पीपल नाउअडेज आर इन्वॉल्वड इन मास्क बिजनेसेस, व्हिच इज नॉट लॉन्ग टर्म बिजनेस. बस कोविड ओवर हो गया तो मास्क बिजनेस आपका नहीं चलेगा, है ना. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट कितनी बड़ी है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट.
So Vivek ji, I think you have you are reading, between the lines. As you said, this accessibility and sustainability in between, because this accessibility comes by checking the failure. So that's a very important point. So let's move on to the next questions. Uh, this question goes like, what is advisable starting your own venture or starting a franchise business, and what are the advantage or disadvantage of both the options? Gaurav sir. तो जितिन, इस पे हमने पहले भी डिस्कस किया है, और आई थिंक आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, उनके सबके बेनिफिट के लिए हम इस पे फिर से डिस्कस करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इसको देखें, एक नया बिजनेस वर्सेस एक फ्रेंचाइजी बिजनेस, तो नया बिजनेस मतलब कि आपने आइडिया आपका है, आप उसको पहली बारी ट्राई कर रहे हैं, या जिन लोगों ने भी पहले ट्राई किया उनके साथ आपका कोई कनेक्ट नहीं है, तो आपके पास उसकी लर्निंग्स नहीं है। आपको सब सीखना है अपने आइडिया में कि वो बिजनेस कैसे चलेगा, किस तरह से इसको चलाएंगे, किस तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, किस तरह से पैसा आएगा, वो सब चीज। जबकि फ्रेंचाइजी बिजनेस का जो एक मूल मंत्र है वो ये है कि एक आइडिया जो कि ऑलरेडी मार्केट में टेस्ट किया जा चुका है, जिसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, पायलट, सब कुछ किया जा चुका है, बहुत सारे लोग इस आइडिया को ऑलरेडी चला रहे हैं अलग अलग जगह पे, उनकी सबकी लर्निंग्स आपके पास है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है फ्रेंचाइजी बिजनेस में और नए बिजनेस में। तो मेरे हिसाब से अगर फ्रेंचाइजी बिजनेस के साथ आपका पैशन और आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल मैच करता है, तो वो एक ट्राइड एंड टेस्टेड एरिया है आपको फटाफट लॉन्च होने के लिए। आपको उतना ज्यादा समय नहीं लगेगा कि आपको फिर से नए सिरे से सब कुछ चीज करनी है। आप यू आर नॉट बेसिकली, जो हम कहते हैं, री इन्वेंटिंग द व्हील। जो पहिया है उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हम आगे बढ़ेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो ये जो दोनों में एक मूल डिफरेंस है, जो मूल फर्क है, और इसी को लेते हुए हमें करना चाहिए। मैं उन आइडियाज को बिल्कुल डिस्काउंट नहीं करूंगा जिनके पास अच्छा आइडिया है, कुछ नया चीज शुरू करना चाहते हैं, वो जरूर करें, बट फ्रेंचाइजी की तरफ भी एक बारी तवज्जो दें, एक बारी देखें कि किस तरह से क्या क्या फ्रेंचाइजी आइडियाज अवेलेबल हैं, और उस हिसाब से अपना निर्णय लें। Right, Gaurav sir. So the conclusion is reinventing the wheel with passion and funds availability. So if it is there, then one should look into the franchise other than their own different ideas. Thank you, Gaurav sir. Gautam sir. Gautam sir, so same questions to you. Yes, yes. It is very much rightly said that we have already discussed these things earlier in earlier sessions, and it is very much rightly said by Gaurav Kapoor sir also कि fund is very much important. If fund is there, suppose people are having some ideas only, but they don't have the fund. So in that case, they have to run their in own way, or they have to start with the baby steps to the different industry in different segments. लेकिन ये जो यदि फंड्स हैं तो वी हैव वन हैज टू गो फॉर द टाइम टेस्टेड फार्मूला ऑफ फ्रेंचाइजी, बिकॉज लॉट मेनी थिंग्स इवन पैसा होने के बाद भी हम रिसर्च नहीं कर पाते। वो सारी चीज़ें ऑलरेडी वो एक्सरसाइज करके, रिसर्च करके, वो डाटा एनालिसिस करके, वो सब चीज़ें फ्रेंचाइजी मिलती हैं जो कि हम फंड होने के बावजूद भी वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा एक सेटअप बैकअप यू कर लीजिए कि जो नया सेटअप कोई शुरू कर रहा है तो यदि फंड है तो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट इन दैट वे। एक बहुत बड़ा बैकअप मिल जाता है, टीम मिल जाती है, टाइम टेस्टेड फार्मूला मिल जाता है, वो सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है इमिडिएटली लॉन्च करके आगे बढ़ने के लिए। जैसा अभी गौरव साहब ने कहा कि हमें वो वी नीड नॉट टू इन्वेंट द व्हील, हमें चलता पहिया मिल गया, मुझे वी हैव टू स्टार्ट इट एंड वी हैव टू मूव अहेड। So Correct, this is the correct, advantage with the franchise systems. So the R&D is not necessary for a No. person who is starting a franchise business. Yes. So I think बहुत important point आपने बात की यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिसिंग होता है। ऐसा विवेक जी ने बताया कि कई लोग आइडियाज लेके आते हैं, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, बट एक्साइटमेंट कई बार लॉसेस की तरफ बढ़ती है, तो फेलियर्स बढ़ते हैं। और एक बार शायद हमने और डिस्कस किया था, इम्पैक्ट ऑफ फेलियर हम नहीं पता कर पाते, शांतनु जी ने भी डिस्कस किया था इस सेशन में। तो आई होप दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क डन बाय द फ्रेंचाइजर, जो फ्रेंचाइजी दे रहा है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गौतम जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर रेज किया है। आशीष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जी
ज्यादातर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो गौरव सर और गौतम सर ने कैप्चर कर ही लिए। This is always going to happen, but you have to, summarize it because Yes. they are coming with a, vast experience. मैं आपको देखिए, ये बहुत बड़ा डायलेमा रहता है लोगों के यहाँ जब वो अपना पहला बिजनेस शुरू करते हैं कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूं या फ्रेंचाइजी लूं। तो मैं दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़ा डिस्कस करूंगा जिससे क्लैरिटी और ज्यादा मिले बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को। जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको जो सबसे बड़ा एडवांटेज हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप सब कुछ अपना स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं, अपना ब्रांड बना सकते हैं, अपने लिए नए प्रोसेसेस सेटअप कर सकते हैं, पूरी क्रिएटिविटी आपके पास है, नए सिरे से अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर सकते हैं, मार्जिन कितना रखना है वो सब आप कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस है कि क्रिएटिविटी बहुत रहती है। बट जो डिसएडवांटेज है वो सबसे बड़ा ये रहता है कि आपके चांसेस ऑफ फेलियर बहुत हाई हो जाते हैं। अगर आप देखोगे कि मैं डाटा आपको बता रहा हूँ, ओनली 60% बिजनेसेस सर्वाइव द फर्स्ट ईयर एंड ओनली 25% न्यू बिजनेसेस सर्वाइव द सेकेंड ईयर। सो हमने बात की इम्पैक्ट ऑफ फेलियर। इम्पैक्ट ऑफ फेलियर बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, आपके फाइनेंसेस भी खत्म हो जाते हैं और सोशल लॉस भी होता है, टाइम लॉस भी होता है। सो इन सबसे बचने के लिए फ्रेंचाइजी ऑप्शन निकाला गया है कि फ्रेंचाइजी ऑप्शन में आपको एक टाइम टेस्टेड फॉर्मूला मिल जाता है। यू कैन गो चेक दैट द बिजनेस इज डूइंग वेल इन अदर एरियाज। आप जा सकते हो ऑलरेडी जो उनकी फ्रेंचाइजीज है उनसे बात कर सकते हैं और आपको एक सेटअप टीम मिल जाती है। बहुत सारी चैलेंजेस है बिजनेस में, छोटे छोटे आते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं, तो यू हैव गॉट ए टीम जो यू कैन फॉल बैक अपॉन कि आप फोन करके पूछ सकते हो कि दिस इज द चैलेंज दैट इज कमिंग। फ्रेंचाइजर्स टीम आपको गाइड कर देगी कि बिकॉज दे आर सीइंग दिस एट ए ह्यूज लेवल, बहुत ज्यादा जगहों पे ये देख रहे हैं। तो एडवांटेजेस फ्रेंचाइजी के बहुत है, आपका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, आप जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाते हो, आपको इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करनी पड़ती नए प्रोसेसेस में। लेकिन ऐसा नहीं कि फ्रेंचाइजी की कोई डिसएडवांटेज नहीं है, फ्रेंचाइजी की भी डिसएडवांटेज है। फ्रेंचाइजी की डिसएडवांटेज ये है कि आपको थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी, देखिए जब आप टीम के साथ काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि सब काम आप ही करोगे, आपने एक टीम सेटअप की तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपको लूज करनी पड़ती है। ऑलरेडी उनके सारे प्रोसेसेस बने हुए हैं विच आर टाइम टेस्टेड। बट आई थिंक कि ऑन इन ए हाइंडसाइट जब आप एक बड़ी टीम के साथ काम करते हो तो आपको अपने थोड़े रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम करने पड़ते हैं फॉर द सक्सेस ऑफ योर वेंचर। सो दैट इज माय टेक ऑन दिस। थैंक यू आशीष जी, आपने काफी ज्यादा पैरामीटर्स कवर किए हैं इसमें एंड आई होप ये सारे पैरामीटर्स अगर ध्यान में रखे जाएं तो सक्सेस ऑफ फ्रेंचाइजी इज वेरी मच देयर एंड फ्रेंचाइज बिजनेस के जो डिसएडवांटेजेस भी आपने बताए हैं दैट इज वेरी मच प्रैक्टिकल एंड वन शुड लर्न फ्रॉम दैट। विवेक जी, आई एम कमिंग ऑन यू, द सेम क्वेश्चंस टू यू since you are already running these franchisees, so what is your take on this, Vivek ji? Can you unmute please? Yeah. So what I always say, franchisee business is basically a ready-made business model, क्योंकि वो एक पूरा एक रेडीमेड बिजनेस मॉडल है। आपको प्लग एंड प्ले के मॉडल में आपको मिलता है, आप आते हो एक प्रोसेस के अंदर और काम करना स्टार्ट कर देते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चीज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज स्क्रैच, आई डोंट से कि यू शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बट स्क्रैच में स्टार्ट करने से प्रॉब्लम क्या है कि आपका लर्निंग कर्व जो है दैट इज वेरी हाई। एंड द सेकंड थिंग जो मैंने पहले बताया था फेलियर में कि वी जम्प्ड ऑन द आइडियाज एंड प्रोडक्ट एंड ऑफिस एंड वी नेवर थिंक ऑफ इट द टीम। बट फ्रेंचाइजी के केस में क्या होता है, आपको एक एक्सपीरियंस टीम मिलती है जो आपको थ्रू आउट द टाइम मेंटर करती है कि व्हाट इज अ राइट, व्हाट इज अ रॉन्ग, बिकॉज उन्होंने अपने जो उनकी लर्निंग कर्व रही 8 या 9 10 साल की जो भी व्हाटएवर इट, उस लर्निंग कर्व में उन्होंने काफी अप एंड डाउन्स देखे हैं, तो वो उसमें से क्रक्स निकाल के लाते हैं जो आपको वो एक रेडीमेड बिजनेस मॉडल की तरह आपको देते हैं, ताकि वो पूरा एक प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। एंड एडिशन टू दैट दे गिव यू लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स, दे गिव यू लॉट ऑफ ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो आपको एक परफेक्ट करता है। Okay, so training is very much important in franchise business. Since I think Vivek ji, most of the franchisor जो भी franchisee दे रहे हैं इस टाइम पे, so I think this training is included in the segment. तो जब भी business model देते हैं तो शायद training पे focus बहुत होता है and training is very much important. ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें और भी आए थे पहले पास्ट में भी, और आई थिंक काफी लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे कि कई लोग ये सोचते हैं कि मैं इस सेक्टर से नहीं हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एग्रीकल्चर सेक्टर है
या मेरा सेक्टर है रियल एस्टेट रीग्रॉब, तो उसमें जी। सोचता है कि हमें सेक्टर से नहीं आए हैं, तो हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो हम इस बिजनेस को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उसमें क्या होता है, आपको फ्रेंचाइजी ग्रूम करता है, टोटली ट्रेनिंग देता है कि आप इस मॉडल के लिए, इस बिजनेस मॉडल के लिए, इस सेक्टर के लिए आप 100% रेडी हो जाओ। तो वो आप उसने जो टूल्स डेवलप किए हैं वो टूल्स डिप्लॉय करता है, आपको ट्रेन करने में उसकी टीम होती है जो आपकी कॉन्टिन्यूसली आपको ट्रेन करती रहती है। Yeah, thank you, Vivek ji. So, training is one of the most important point which franchisers takes care, और franchisor अपने साथ में एक training module भी run कर रहे हैं as per you। आपने जो tools develop किए हैं, जो strategies बनाई हैं, वो trainings के माध्यम से franchisee को मिलती हैं। So, I think this is a very important point and हम लोग इसको बार-बार इस बात को भी कह रहे हैं, सारे हमारे attendees भी इसको समझ पा रहे होंगे कि training is very much important when they are jumping into any new franchisee business. Thank you, Vivek ji. So now we are moving to another questions of this session. What are the ways a business venture can made profitable on sustainable basis? This is a very techy or very important question. So I'll take this question to Gautam sir. Gautam sir, क्या कहना चाहेंगे आप कि what are the ways of business ventures which can be made profitable on sustainable basis? So this important point is sustainable. So what is your take? Sustainable means I can main for any industry, it is a cash flow. If you are maintaining the cash flow with the time flow, with the time, at the right time, you need a certain kind of cash flow. So maintaining cash flow is very important in running any business. If you are stacking up your money with the suppliers in the supply chain or with the suppliers, that is going to be a great challenge. तो वो मेरे समझ से कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी गौतम बिजनेस सर, हम इसमें कैश फ्लो को इन्वेंट्री से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंचाइजी में ये होता है कि हमें इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती है, इन्वेंट्री की कम जरूरत होती है। तो इसमें वो बात आप सही करें, यू आर वेरी मच रेज द राइट पॉइंट। इन्वेंट्री अभी जैसे मैं आप जस्ट एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, फर्टिलाइजर बिजनेस में क्या है कि इतना कम मार्जिन है इसमें और इतना फ्लो इतना ज्यादा है कि यदि इन्वेंट्री आपने कैरी कर लिया तो इसका मतलब आपके जो प्रॉफिट है सारे इन्वेंट्री में खत्म हो गए। तो इन्वेंट्री कंट्रोल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कैश फ्लो आल्सो। तो फ्रेंचाइज मॉडल में ये चीज तो एक जो है कि वेल कंट्रोल होता है, उसको पता है कि इतनी सेल हो रही, तो इन्वेंट्री वाले पॉइंट तो मैं मानता हूँ कि इट इज इम्पोर्टेंट। Okay, so inventory control and cash flow makes the sustainable business. Ashish ji, I'm coming on you. How this sustainability is important and how it can be managed for a new business. Can you unmute, please? Thanks, Jitendra. Yes. So, जो हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं किसी भी स्मॉल बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि he needs two things, customers and profits. अगर ये दो चीज उसके बिजनेस में है तो he should be content, he should be happy that his business is going in the right direction. He can meet all the challenges. So जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स इज अ फंक्शन ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो दो चीज आती है कि आपको एक सस्टेनेबल रेवेन्यू बना के रखना है अपने लिए और कॉस्ट जो है उसे सस्टेनेबल रखना है। तो आपका जो सस्टेनेबल रेवेन्यू है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपके मार्केटिंग एंड सेल्स पे। आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स सस्टेनेबल होनी चाहिए, आपके पास कस्टमर्स लगातार आते रहने चाहिए। इसके लिए आप जब अपने फ्रेंचाइजर से बात करेंगे तो डेफिनेटली दे मस्ट हैव सम ऑप्शन कि आपके पास लगातार कस्टमर कैसे आते रहें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस वीकेंड या इस वीक हमारे पास कस्टमर्स आए, नेक्स्ट 2 वीक्स हमारे पास कस्टमर्स नहीं आए तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लो हो जाएगी। यू नीड टू डिवाइस मेथड्स। आपकी टीम, इफ यू हैव टेकन फ्रेंचाइजी, तो आपके फ्रेंचाइजर के पास इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि हर वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ कस्टमर्स आते रहेंगे आपके पास और ट्रांजैक्शंस होते रहेंगे, तो आपका सस्टेनेबल रेवेन्यू बना रहेगा। सेकंड थिंग व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन कि आपकी कॉस्ट कंट्रोल में रहे, कॉस्ट आपकी लगातार बढ़ती ना रहे। कॉस्ट आपकी दोनों चीज का फंक्शन हो सकती है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी और मार्केटिंग कॉस्ट भी। ऐसे जैसे मैंने अभी पहले बोला कि इस वीक आपके पास कस्टमर आए, नेक्स्ट वीक कस्टमर नहीं आए, जबकि आपकी एक्सपेंस लग गए तो आप लॉस में आ जाएंगे। तो आपको इन दोनों चीजों पे कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा और इन दोनों चीजों में आपकी टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन कैन हेल्प यू लॉट अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए
एज वेल एज कंसिस्टेंटली अपने जो रेवेन्यू है उसे सस्टेनेबल भी रखना है, आपको सस्टेनेबली ग्रो करना है। आपको उसे आपकी कॉस्ट बेशक चाहे एक लीनियर चलती रहे, आपका जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स है दैट शुड गो अप। आशीष जी, इसमें आपने जो बताया ये कॉस्ट एंड रेवेन्यू का जो बैलेंस है, ये बहुत समझने वाली बात है कि हम बात तो करते हैं इस चीज की, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? जैसे आपने बताया कि फ्रेंचाइजर के पास इस चीज का आंसर होता है, तो यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि जो फ्रेंचाइजर है हमारा, जिस जो टेक और इन सब चीजों को साथ लेके चल रहा है, तो कैन देर आर रेवेन्यू, आई मीन दी रिव्यू सिस्टम्स आर देयर विद द फ्रेंचाइजर, जो भी हम फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं? जी हाँ जी बिल्कुल। जैसे अभी थोड़ी देर पहले विवेक ने बात की कि ट्रेनिंग लगातार मिलती रहती है कि हाउ टू अट्रैक्ट कस्टमर्स या हाउ टू कीप योर कॉस्ट लो। तो जी जब आप एक फ्रेंचाइजी सिस्टम में जाते हैं विच इज एक्चुअली अ बिगर सिस्टम, तो वहां पर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव को ग्रो करते हैं और आपको लगातार ट्रेनिंग भी मिलती है। देयर आर ऑटोमेटेड सिस्टम्स, ऑटोमेटेड मार्केटिंग टूल्स की लगातार आपके पास कस्टमर्स आते रहे। तो इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक न्यू बिजनेस न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो अपना ना बिजनेस पर्सपेक्टिव बहुत ग्रो करे। ऐसा ना सोचे कि मैं जो बिजनेस शुरू कर रहा हूँ आई एम डेफिनेटली यू आर डूइंग इट फॉर 2 3 4 5 और मोर देन 10 years, लेकिन आप जो उसमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो 6 months पे करें, 8 months पे करें कि मुझे 6 to 8 months में ब्रेक इवन भी लाना है और प्रॉफिट्स भी निकालने हैं। ओनली देन योर बिजनेस विल बी सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टर्म। तो दैट मीन्स दैट रिव्यू सिस्टम हैज टू बी सम टाइम पीरियड, यानी कि 6 महीना आपने बताया कि 6 महीने इज अ वेरी गुड टाइम कि जी आदमी समझ चुका होता है कि मेरा बिजनेस सेटल हो रहा है, मेरा फ्रेंचाइजर की तरफ से ये सपोर्ट आ रहा है। तो दैट्स अ वंडरफुल थिंग दैट आपने जो बताया आज। विवेक जी, आपको उसी पॉइंट से मैं बात करना चाहूंगा। ये जो सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, जो हमारा थर्ड सेशन है, तो इसमें जो ये ट्रेनिंग वाला जो आपने पार्ट कहा, कितना इंपॉर्टेंट है ये सस्टेनेबिलिटी लाने में? See, everything is depend upon the training because throughout our life हम trained होते हैं. जब हम trained होते हैं then output comes obviously, output काफी अच्छा आता है. तो एक्चुअली एक न्यू जो एक बंदा होता है उसके साथ में सबसे बड़ी challenges आते हैं कि let's take an example, अगर he is coming out of job, उसको exposure नहीं होता है, business का exposure नहीं होता है, तो उसको ये नहीं पता हो कि एक्चुअली मुझे क्या टूल्स डिप्लॉय करने, क्या रिसोर्सेज डिप्लॉय करने, क्या टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करनी है, उसको इसकी बैकग्राउंड की नॉलेज नहीं होती है। तो इसके कारण उसको काफी चैलेंजेस फेस होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे मेरे लाइक इन माय बिजनेस काफी लोग मुझसे फ्रेंचाइजी जब लेने आते हैं तो मुझसे कहते हैं कि सर आप सर ये मैं आपकी फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ, क्या आप होर्डिंग लगाओगे सर मेरे घर के पास में, बहुत बड़ी सी होर्डिंग, ओके। बहुत बड़ी सी होर्डिंग विच कॉस्ट अराउंड 3-4 लाख 5 लाख रुपीज। मैं उसको बोलता हूँ कि इस होर्डिंग का करोगे क्या आप? सर मेरी 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 ब्रांड बनेगा। मैंने कहा ब्रांड का क्या करना है यार, आपको कस्टमर चाहिए एंड ऑफ द डे। फर्स्ट तो पहले आपको कस्टमर चाहिए, सेकंड स्टेप इज अ ब्रांड, और वो होर्डिंग लगाने से आपको कस्टमर नहीं आएंगे। सो वो जो पैसा लग रहा है वो रिसोर्स होर्डिंग में जा रहा है, रेदर देन आई विल इन्वेस्ट मनी ऑन द डिजिटल में पैसा लगाऊंगा तो मैं कस्टमर भी एक्वायर करूंगा, ब्रांड भी बिल्ड करूंगा, विच इज मच फास्टर देन having a putting a hoarding in somewhere places. Second, which I think कि टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी क्या है कि अभी आप 4 या 5 6 कस्टमर ऑफलाइन तरीके से पकड़ने की कोशिश करते हो, 10 कस्टमर, इट डिपेंड अपॉन बिजनेस टू बिजनेस। बट टेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि जो स्केलेबिलिटी है वो बहुत हाई है, ऑटोमेशन पे काम हो रहा है और कस्टमर एक्विजिशन बहुत फास्ट हो रहा है। लेकिन माई केस, मैं अगर रात में भी सो रहा हूँ तो मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरे को कस्टमर तो एक्वायर हो रहे हैं। दैट इज अ बिग थिंग। तो ये सारी चीजें हम ट्रेनिंग में उसको सिखाते हैं वंस ही कम्स विद अस इन टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइजी। तो बेसिकली सर, विवेक जी, आपने जो बताया ये ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है, इस ट्रेनिंग में हम लोगों की कोशिश ये रहती है फ्रेंचाइजर की कि हम उसको सेम पेज पे लेके आए, सेम जो उसके दिमाग में या जो उसके माइंड में एक बैक ऑफ माइंड जो चल रहा है कि उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए बोर्ड चाहिए या कुछ और चाहिए, उससे बिजनेस आएगा। तो कई बार ये फैक्टर्स बड़ा अनरिलेटेड होते हैं, आई यू मीन टू से। यस। Okay, okay. So that means मैं attendees को बता दूं, there is a very good news, like trainings can change your mindset, or maybe it can give value addition when you are starting a franchisee. So first of all, when you are choosing a franchisee, आप कोशिश कर रहे हैं कि franchisor के पास training module है and he is ready to make you comfortable while taking a franchise. Thank you, Vivek ji. So now we are moving to another question. Vivek ji, we have a very important questions to ask you. So we'll be taking up these questions after this, the last question that we are taking today.
how to choose the right franchise options to run a profitable business. This right franchisee option comes in a different wide variety is there. So Ashish ji, I'll be asking you this question for the first thing. राइट फ्रेंचाइजी ऑप्शन का क्या मतलब होता है? राइट फ्रेंचाइज ऑप्शन तो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज वी आर गेटिंग लॉट ऑफ क्वेरीज एंड कई लोगों ने हमें बोला कि आशीष जी से आप किस चीज के बारे में बात करें. सो आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द अटेंडीज कि व्हाट इज द राइट फ्रेंचाइज ऑप्शन टू रन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. और आज एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बात हो रही है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे हो सकता है. So after you, I'll be taking these questions to Gautam sir, and then we'll come back again to Vivek ji. Ashish ji, बताइए. देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सभी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो भी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं कि एक राइट फ्रेंचाइजी क्या होती है. देखिए, राइट फ्रेंचाइजी वो होती है जो आपकी काफी सारी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करे, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को अपने साथ कॉन्सोनेंस में लेते हुए. I always say कि to find the right franchisee, you should check every franchisee proposal with 4 different fits. First is strategic fit. आप जो फ्रेंचाइजी प्रपोजल को एनालाइज कर रहे हैं वो आपके साथ स्ट्रेटेजिक फिट में होना चाहिए. आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो भी अपेक्षाएं हैं फ्रेंचाइजी से, वो आपके स्ट्रेटेजिकली पूरी होनी चाहिए. जैसे स्ट्रेटेजिक फिट क्या होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि आपका ड्रीम है कि मैं 2 साल के अंदर आई वांट टू बाय एन ऑडी, आई वांट टू हैव एन इंटरनेशनल ट्रिप विद माय फैमिली. सो ये सब आपको ऐसा बिजनेस नहीं दे सकता विच इज इट बाय इट्स वेरी नेचर एक स्मॉल बिजनेस है. वो आपको डेली का रेवेन्यू तो थोड़ा कमा के दे सकता है. जैसे आपने QSR खोल लिया विच सेल्स टी, तो आपको 5 रुपए पर टी पे अगर आप कमाते हैं तो 1 लाख रुपए कमाने के लिए आपको 20,000 टीज बेचनी पड़ेंगी. तो वो आपको डेली का रेवेन्यू तो दे देगा स्मॉल, बट आपके जो एस्पायरेशंस हैं इट विल नॉट बी एबल टू मैच दैट. सो दैट इज स्ट्रेटेजिक फिट. सेकंड थिंग इज ऑपरेशनल फिट. आपको जब अपनी क्लैरिटी हो जाती है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट एनालिसिस, तो आपने देखा कि जैसे आई एम ए वेरी आउटगोइंग पर्सन और मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, मैं बाहर जाता हूँ, आई कैन सेल थिंग्स टू पीपल बाय गोइंग टू देयर ऑफिसेज, बाय गोइंग टू देयर होम्स, प्लेसेस वेयर आई कैन डू ट्रांजेक्शन. तो अगर आप ऐसा बिजनेस चूज कर लेते हैं कि जो बहुत ही पैसे में आपको दिन भर बैठे रहना है, यू आर डूइंग सम अकाउंटिंग वर्क, तो वो आपके ऑपरेशनल फिट में नहीं होगा. या जैसे आप एक QSR खोल लेते हैं कि आपको डेली सुबह सब्जी लेने जाना पड़ेगा एंड यू डू नॉट लाइक टू गो टू सब्जी मंडी डेली, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस, यू विल हैव टू डू इट, सो यू वुड नॉट लाइक इन द लॉन्ग टर्म. तो जब आपका पैशन उसके साथ मैच नहीं करेगा तो वो उस तरीके की एनर्जी निकल के नहीं आएगी. एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड थर्ड थिंग इज फाइनेंशियल फिट. जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि आपको जो सोचना है, आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तो सोचना है अपने बिजनेस को लेकर कि 3 साल 4 साल में कहाँ जा सकता है, लेकिन फाइनेंशियली आपको थोड़ा छोटा सोचना है कि मैं इस बिजनेस को क्या 6 मंथ्स 8 मंथ्स के अंदर ब्रेक इवन करके प्रॉफिट मेकिंग शुरू कर दूंगा. और अब जब हम अकाउंटिंग में गोइंग कंसर्न की बात करते हैं तो क्या मेरे पास इतना पैसा है कि अगर ये बिजनेस मुझे 1 साल भी पैसा नहीं दे तो कैन आई रन इट. तो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा गलत डिसीजन ले लेते हैं. वो सोचते हैं कि हमें पैसा 6 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाएगा बिजनेस, जबकि बिजनेस को प्रॉफिटेबल होने में 9 से 10 महीने लग रहे हैं उसे. तो आफ्टर रनिंग इट फॉर 5-6 मंथ्स वो एक सिचुएशन में आ जाते हैं कि जहां उनके पास बिजनेस चलाने का पैसा नहीं होता है. तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन इट एंड आई वुड से दैट यू शुड चूज बिजनेसेस जहां पर मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स हो, आपको रेवेन्यूज जल्दी आए और प्रॉफिटेबल आप जल्दी हो जाओ. आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट नीड ऑफ द आवर इन आवर कंट्री कि जल्दी बिजनेस करना है, जल्दी प्रॉफिट्स निकालने शुरू करने हैं. सो आई थिंक दीज फिट्स यू शुड लुक एट व्हाइल स्टार्टिंग आउट. Thank you, Ashish ji. You have open eyes for few factors like मेरे को भी ये बाय हार्ट याद होने वाला है. स्ट्रेटेजिक फिट, फाइनेंशियल फिट, ऑपरेशनल फिट एंड मार्केट फिट. सो लाइफ गोज राउंड एंड राउंड बिटवीन दीज फिट्स. तो वन शुड आई थिंक एज पर यू, मुझे लगता है कि उनको लिख कर इसको अपने पैरामीटर्स को चेक करना चाहिए जब व्हेन दे आर टॉकिंग ऑफ मेकिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस. और लास्ट में आपने डिस्कस किया एक मल्टी मॉडल रेवेन्यू होना चाहिए जो कि रेवेन्यू आते रहे उसको. So we'll be talking more from you like बुके फ्रेंचाइज के बारे में हम बात करते आ रहे हैं और आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया है उसका. तो काफी हमें मेल्स रिसीव हुए हैं, ईमेल्स आए हैं कि वो लोग जानना चाहते हैं
बुके फ्रेंचाइज कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप इट इज कमर्शियल। आई थिंक अभी वो चालू हो गया है बुके फ्रेंचाइज जो आप बात कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। So we'll be taking your 5 minutes discussion on this bouquet franchise. Gautam sir, in between I'll ask you the same question कि अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर ये जो राइट फ्रेंचाइजी ऑप्शन चूज करना है हमें, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि राइट फ्रेंचाइज ऑप्शन कैसा होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि हमें ये मल्टीपल मॉडल रेवेन्यूज भी दे। आपने बात करी री इन्वेंटिंग द व्हील्स होना चाहिए उसके अंदर, या आपने बात करी कि पैशन होना चाहिए, फंड्स की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, R&D के बारे में आपने बहुत डिस्कस किया कि R&D फ्रेंचाइजर से मिल सकता है हमारे को। तो गौतम सर आप बताएं कि इसमें राइट फ्रेंचाइज ऑप्शन में और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे। आशीष जी ने जैसा बहुत डिफाइंड वे में बताया है इसको, तो गौतम जी आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर कैन यू अनम्यूट आपका, या प्लीज। आशीष जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से डिफाइन किया हुआ है, और यू हैव सेड वेरी मच राइटली कि आपको वो सारी चीजें वो पेन डाउन करके कहीं वॉल पे रखनी पड़ेगी। और जो भी फ्रेंचाइज के लिए या बुके फ्रेंचाइज के लिए जो भी इंटरेस्टेड है, दे शुड इवेल्युएट ऑन दोज पॉइंट्स कि उसका स्ट्रेटेजिक फिट क्या है, उसका ऑपरेशनल फिट क्या है, फाइनेंशियल फिट क्या है। लेकिन उसमें जो पैशन की बात जो की आशीष जी ने की है, चाहे गौरव कपूर सर ने की, पैशन का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट वहां से होना चाहिए। बाकी तो सारे, क्योंकि वो एक अलग एनर्जी है, बियॉन्ड द मनी, बियॉन्ड द ऑपरेशनल फिट, बियॉन्ड द स्ट्रेटेजिक फिट। वो एक अलग काइंड ऑफ वो एक फैक्टर है जो कि आदमी को ड्राइव कर सकता है। मुझे जो दिख रहा है एग्री सेक्टर में, एक फ्रेंचाइज जो अभी एक किसान एक्सपीरियंस सेंटर के बारे में मैंने सुना है, उसमें वो एक तरह से वो मुझे लग रहा है कि वो एक बुके इटसेल्फ इट्स ए बुके फ्रेंचाइजी। क्योंकि पूरे एग्री वैल्यू चेन में क्या है, जितनी भी जो अलग अलग दे आर डिफरेंट स्टेप्स, लॉजिस्टिक्स भी है, प्रोडक्शन भी है, प्राइमरी प्रोसेसिंग भी है, डिलीवरीज भी है। तो इटसेल्फ एक केसी इटसेल्फ अपने आप में एक बुके फ्रेंचाइजी है, वेयर ए पर्सन कैन चूज सेट ऑफ फ्रेंचाइज। मैंने वो लॉजिस्टिक में रहना चाहता है, सप्लाई चेन में रहना चाहता है, आईटी भी इन्वॉल्व है उसमें का। तो यदि आईटी स्ट्रेंथ है तो ही कैन इन्वॉल्व विद द आईटी एप्लीकेशंस। तो मुझे तो उसमें पूरी चीजें दिख रही हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी बेस्ट फिट फॉर एग्री एंटरप्रेन्योर्स। अब उनका पैशन कितना है एग्री के प्रति, वो उनको खुद चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एग्री में बड़े एडवर्स कंडीशंस भी होते हैं, बड़े। सर मेरा एक ये सवाल है इसमें आपका हाँ। एडिशन में मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको बेसिक जानकारी है एग्रीकल्चर में, या इसके अंदर में एक मेरे जैसा भी लेमैन आदमी भी स्टार्ट कर सकता है इसको? आप इसमें मुझे थोड़ा सा एक, क्योंकि ये सवाल कई बार आया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा टेक्निकल सेक्टर होता है, या जो इसमें चीजें होती हैं वो टेक्निकल होती हैं, बट आई फील कि जिसको एक जनरल इंफॉर्मेशन है फ्रेंचाइजी के माध्यम से, वो एंटर कर सकता है उस बिजनेस में। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो टेक्निकल चाहिए वो सिर्फ चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन में, सिर्फ प्रोडक्शन में टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। बाकी आफ्टर प्रोडक्शन, या जो आप फार्म टू फोर्क या प्लाउ टू प्लेटर की बात करते हैं, आफ्टर प्रोडक्शन everyone can enter into it as per their interest and their SWOT strengths. सिर्फ प्रोडक्शन में थोड़ी टेक्निकल है कि भाई क्रॉप प्रोडक्शन है, उसमें ये क्रॉप इस टाइम पे स्प्रे चाहिए, इस टाइम पे ये डिजीज आ जाता कंट्रोल। अदरवाइज पूरे आप देख लिए आईटी सेक्टर्स के अधिकतर लोग एग्री में घुस गए, ऐप लेके और नई नई टेक्नोलॉजी लेके अधिकतर लोग आईटी में है। और तो क्रॉप प्रोडक्शन आपका वाला मतलब ये है कि सब फ्रेंचाइजी के साथ हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा टेक्निकल जो इन्वॉल्व है वो प्रोडक्शन साइड पर है, प्रोडक्शन मार्केटिंग साइड पे, बिजनेस साइड पे नहीं है। So कोई कोई thanks a कोई lot, sir, इन्वॉल्व to make us understand about this. How to choose a franchise. I think Vivek ji is not with us. He is having some technical issues. Now he has come back. Okay, Vivek ji, we were talking of choosing a right franchise. अभी गौतम जी ने बात करी, एक काफी बार मैंने देखा है गौतम जी बात करते हैं टेक्निकल की, बात करते हैं कि टेक्निकल के ऊपर बहुत जोर है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, रियल स्टेट में है। तो आई थिंक मैं अटेंडीज को भी यही कहना चाहूंगा, जो हमारे से जो जुड़े हुए हैं, जो बुके फ्रेंचाइज की बात कर रहे हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट को साथ रख के हमें चलना होगा, और ट्रेनिंग्स पे बहुत ध्यान देना होगा। तो विवेक जी, कैन यू गिव अस
दी बेस्ट फ्रेंचाइजी टूल, कि मैं कैसे चूज करूं कि मेरे को ये 5 पैरामीटर अगर मिलें तो आई कैन एक्सेप्ट द फ्रेंचाइजर, और जो मेरे इंस्पिरेशंस हैं, जो मेरे एस्पिरेशंस हैं बिजनेस को लेके, रेवेन्यू को लेके, वो सारे पूरे हो सकें। आफ्टर कंसिडरिंग आशीष जी के 4 फैक्टर, मैं बार बार इसको रिमाइंड कर रहा हूँ: स्ट्रेटेजिक फिट, ऑपरेशनल फिट, मार्केट फिट एंड फाइनेंशियल फिट। तो विवेक सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या वो 5 चीजें हो सकती हैं, क्या वो 6 चीजें हो सकती हैं जिसको मैं सेलेक्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाऊँ? विवेक जी। So in terms of franchisee, see one thing which is very important, what I mentioned earlier also, कि experience team, जो टीम है वो एक्सपीरियंस है कि नहीं है, जो आपको फ्रेंचाइजी दे रही है, आप जिसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो। बिकॉज एंड ऑफ द डे, बिकॉज द टीम विल रन होल शो। ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप प्रोडक्ट बिक जाएगा, आइडिया अपने आप चल जाएगा। तो जब भी आप जिसकी फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो आप उसके मैनेजमेंट से बात करो, आप उसके फाउंडर से बात करो, उसकी टीम से बात करो, तो वहां से आपको पता चलेगा कि एक्सपीरियंस टीम है कि नहीं है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट, एक्सपीरियंस मैनेज टीम हाँ होना चाहिए जी। हाँ, एक्सपीरियंस। सेकंड व्हिच आई एम टॉकिंग कंटिन्यूअसली, द टेक्नोलॉजी, वेदर उन्होंने टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की हुई है कि नहीं की हुई है। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं डिप्लॉय की है, और ऑफलाइन बिजनेस में 100% तो आपको कस्टमर जो मिलेंगे उसकी उसकी क्वांटिटी कम होगी इन कंपैरिजन। तो टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एक्विजिशन एज वेल एज जो आपका प्रोसेस है, आप जिसकी फ्रेंचाइजी ले रहे हो वो ऑटोमेशन पे चल रहा है कि नहीं आपका प्रोसेस। ये सर सारे सेक्टर्स में सेम रहता है या स्पेसिफिक नहीं टू? नहीं, मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर्स में रहता है, बट कुछ सेक्टर्स में नहीं हो सकता। जैसे कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें नहीं डिप्लॉय किया जा सकता ओके। है ना। तो वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वो आप जब फ्रेंचाइजर से बात करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेक्नोलॉजी। लेकिन मेरे बिजनेस में है, अगर मैं अपने रेग्रॉप की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे बिजनेस में सीआरएम बहुत जरूरी है कि कस्टमर को पता, कस्टमर आ रहा है कब विजिट करने आएगा, साइट विजिट, ओके। मेरे फ्रेंचाइजी को एसएमएस आ जाए, उसके करेक्ट। ऑटोमेटिक कैंपेन्स चल जाए, या कस्टमर एक्वायर हो रहा है। तो हम मेरे बिजनेस में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सेकंड पॉइंट इज टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट सर। हाँ, टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड विच आई फाउंड की मार्केट टेस्टेड है कि नहीं, उन्होंने मार्केट टेस्ट किया है कि नहीं किया है। बिकॉज जनरली इंडिपेंडेंट बिजनेस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम किसी मार्केट को टेस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वो प्रोडक्ट उस जगह पे फिट है कि नहीं है, मतलब उस मार्केट में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। जरूर नहीं है ये प्रोडक्ट जो आज दिल्ली में चल रहा है वो प्रोडक्ट हो सकता है एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे वो फिजिबल ही ना हो। जो लोकल इकोनॉमी की बात जो आशीष जी करते हैं, आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं हाँ, आई लोकल इकोनॉमी की। थिंक। तो वो बहुत ठीक है इंपॉर्टेंट है, वो आपको फ्रेंचाइजर ही बता पाएगा कि जी जी जी। है ना। So these 3 points are very important as per you by choosing the right franchise. और कुछ और बताना चाहेंगे विवेक जी? प्लस व्हाट आशीष हैज मेंशन कि अगर आप हो सकता है तो पॉसिबल है तो आप उनके एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी से बात कर लो, दे विल गिव यू अ गुड फीडबैक ऑन दैट। टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल कह सकते हैं हम इस बात को? हाँ, टेस्टिमोनियल कह सकते हैं। बट ओके सबसे ओवरऑल दो ही चीज है, एक्सपीरियंस टीम, आई मीन जो पूरे रन को शो कर रहा है मैनेजमेंट। ओके ओके। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो रेज किए हैं। एक एक्सपीरियंस टीम है जो कि पूरा शो रन करती है, और आजकल जो बिजनेसेस हैं उसमें एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, कस्टमर एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, इनका इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है सो दैट रिपीट बिजनेस आए। देन आपने बात की मार्केट टेस्टिंग एंड देन टेस्टिमोनियल्स। So these are the 4 factors you have talked about. Thank you, Vivek ji. Ashish ji, I am coming on you since this is the end of this session now. So can you, give us again? I'm asking you the bouquet franchise, which is a hot topic nowadays, and everybody is talking of what is that, because पहली बार है, और आज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आज जो नीड है, उसके हिसाब से बुके फ्रेंचाइज एक ऐसा प्रोडक्ट निकल के आ रहा है जो कि हर आदमी लाइक कर रहा है उसको। तो आशीष जी, मैं जानना चाहूंगा कुछ पॉइंट्स आप बताएं सो दैट एवरीबॉडी शुड नो कि हाँ ये बुके फ्रेंचाइज होता है, और जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो पैरामीटर उसमें आते हैं या नहीं आते। आशीष जी प्लीज। देखिए, हमने हमने आज बात की कि हाउ टू चूज अ राइट फ्रेंचाइज। हमने आज बात की कि हाउ टू बिल्ड ए सक्सेसफुल एंड सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस, जो आपको सस्टेनेबली प्रॉफिट बना करके देता रहे। और फिर हमने बात की कि हाउ टू, मतलब इन हाउ टू चूज द राइट फ्रेंचाइज हमने बात की कि ट्रेनिंग कैसे हेल्प कर सकती है। गौतम सर ने बोला टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है, विवेक ने ट्रेनिंग के बारे में बताया। वी टॉक्ड की व्हाट आर द डिफरेंट फिट्स दैट कैन हेल्प यू आउट।
तो अगर हम जब सस्टेनेबल बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं जो आपको सक्सेसफुल एंड सस्टेनेबल प्रॉफिट कमा करके देते हैं। तो फर्स्ट थिंग होती है कि आपके पास मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम होनी चाहिए। जैसे विवेक बताता है कि हम लोग घर तो बेचते ही थे, हमने होम लोन और बेचना शुरू कर दिया। जैसे somebody has started a टी बिजनेस, तो उसे टी के साथ लोग आते हैं चाय पीने, उसने समोसा और बेचना शुरू कर दिया। और लोग सर्दियों में टी बहुत पीते हैं पर गर्मियों में क्या करेंगे, तो उसने कोल्ड ड्रिंक्स रख ली। so he has got multiple revenue streams from a single customer। उसने कस्टमर की कोरिलेटेड नीड्स जानकर, वांट्स जानकर परफेक्टली कोरिलेटेड प्रोडक्ट्स रखनी शुरू कर दी कि एक प्रोडक्ट वो लेने आएगा तो साथ में मैं उसे उसके कॉम्प्लीमेंट्री और प्रोडक्ट्स भी दे दूंगा। करेक्ट। मल्टीपल रेवेन्यूज, जिससे कि आपका वो जो हमने बात की थी सस्टेनेबल रेवेन्यू, वो हमेशा आपका अप रहे एंड इट कीप्स ग्रोइंग, वो आपका कम नहीं हो, क्योंकि अगर वो कम होगा तो प्रॉफिट्स आपके कम होंगे। टू हैव मल्टीपल रेवेन्यूज यू नीड मल्टीपल प्रोडक्ट्स विच यू कैन सेल टू योर कस्टमर, सिंगल कस्टमर। आपके पास कोई कस्टमर एक चीज लेने आया, आपने उसे 4 चीज लेकर के भेजा, क्योंकि कस्टमर का लाइफ साइकिल मैनेज करना बहुत जरूरी है। आपने उसे एक ही बार एक चीज बेच करके वापस भेज दिया तो आपकी जो एक्विजिशन कॉस्ट है, बस उस पर आप थोड़ा सा ही मार्जिन लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं, बट नेक्स्ट टाइम आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि जो आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है, वो नेक्स्ट टाइम आपकी बहुत कम होगी। पहली बार बुलाने में ज्यादा पैसा लगा। एंड टू अचीव ऑल बोथ दीज थिंग्स यू नीड मल्टीपल ग्रोथ ड्राइवर्स। सो आपके पास ऐसी टीम होनी चाहिए, जैसे गौतम सर ने आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट in all aspects of business, in marketing also you need team जो कि लगातार रिसर्च करती रहे, क्योंकि this is a very fast changing environment right now। businesses बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं, this world is changing very fast, so you need a team जो कि लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती रहे कि भाई अब क्या चीज इस बिजनेस को ग्रो करेगी। तो यू नीड मल्टीपल ग्रोथ ड्राइवर्स, यू नीड टू हैव वेरी गुड टीम। सो अब मैं आपको डिस्कस करूंगा कि हाउ बुके फ्रेंचाइजी कैन हेल्प यू विद दिस। So Bouquet franchisee can bring multiple products, multiple revenue streams to your business। कि आपके पास कोई कस्टमर आया और उसे आपने घर तो दिया ही, साथ में होम लोन भी दिया, या वो फिर आपको पता चला कि ये बिजनेस पर्सन है, तो आपने उसे इवेंट मैनेजमेंट के लिए भी कुछ एडवर्टाइजिंग पैकेजेस दिए which helped him actually। you are selling him solutions। तो दिस सॉल्यूशन सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप कोई बड़ी चीज बेचते हो तो यू गेट टू नो योर कस्टमर वेरी नाइसली, बहुत ज्यादा आपका मेल मिलाप हो जाता है, बहुत अच्छे से उसकी प्रॉब्लम्स जान जाते हैं, तो यू कैन सेल हिम मोर सॉल्यूशंस। सेलिंग मींस प्रॉफिटेबली सेलिंग सॉल्यूशंस। और आपके पास ये बुके फ्रेंचाइजी में सबसे बढ़िया बात है कि आपके पास एक बहुत अच्छी कोर टीम्स है विच इज मल्टीपल वर्किंग ऑन डिफरेंट बिजनेस एस्पेक्ट्स, कि अब कहाँ से ग्रोथ आएगी। अभी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वहां पर एक जगह से ग्रोथ 6-7 महीने या साल भर तक ही आ रही है। सो यू नीड टू कंसिस्टेंटली डू रिसर्च। सो एक बुके फ्रेंचाइजी आपकी ये तीनों प्रॉब्लम, ग्रोथ कहाँ से आएगी, प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगी और मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स कहाँ से आएंगी, तो ये तीनों चीज सॉल्व करती है। दैट इज व्हाई पीपल आर लाइकिंग दिस बुके फ्रेंचाइजी सो मच। Thank you, Ashish ji. It's a wonderful thing that I can talk, can observe from your saying that it looks like a wonderful package। तो जिसने भी ये लॉन्च किया है बहुत अच्छा पैकेज लग रहा है सुनने में। मल्टीपल रेवेन्यू की बात की आपने, मल्टीपल प्रोडक्ट्स की बात की, मल्टीपल ग्रोथ ड्राइवर्स की बात की। So I think we can combine it as a 3Ms। If I'll be correct, then 3Ms is the right option to say the bouquet franchise complete these all 3Ms। एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोला है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होता है क्लाइंट का, उसको लो करने के लिए यू नीड मल्टीपल प्रोडक्ट्स सो व्हिच कैन डाइवर्सिफाइड आल्सो। So that's a wonderful thing। I think Bouquet franchise can make the franchise business profitable and sustainable because it comes with experienced team, technology and market testing, and also we can have these testimonials also after running for 6 months or 1 year। So any other panelists would like to add on to this Bouquet franchise, because हम बहुत बात कर रहे हैं Bouquet franchise की, बहुत queries receive हो रही हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो मैं विवेक जी आपसे पूछना चाहूंगा, do you have anything to add with this Bouquet franchise? सी जितेन, बुके फ्रेंचाइजी पहले सबसे इम्पोर्टेंट है समझना। बुके फ्रेंचाइजी जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये 2-3 फ्रेंचाइजी का कॉम्बिनेशन है। आप 2-3 कंपनीज के फ्रेंचाइजी एक साथ लेते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने रिगरॉप की फ्रेंचाइजी ली एग्रीकल्चर में, तो आपने 2 कंपनी की फ्रेंचाइजी एक साथ ले ली।
तो दैट इज कॉल्ड अ बुके फ्रेंचाइजी। मैं थोड़ा सा जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं उनको ये क्लियर करना चाहता हूँ बुके फ्रेंचाइजी। तो अब सपना है कि मैंने अब बुके फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ तो इसके मुझे एडवांटेजेस क्या होंगे, क्यों मैं 2 ले रहा हूँ, एक क्यों ना लूं, एक लेके क्या एडवांटेजेस होंगे, अगर 2 ले रहा हूँ तो और क्या ज्यादा एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो 2 कंपनी की अगर हम फ्रेंचाइजी लेते हैं विच इज कॉल्ड बुके फ्रेंचाइजी, उसका एडवांटेज होता है कि आपके जो रिसोर्स होते हैं वो शेयर्ड हो जाते हैं, दैट इज शेयर्ड रिसोर्सेज। बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि आपने एक छोटा सा ऑफिस खोलना है उस बिजनेस को रन करने के लिए, तो आप एक ऑफिस से 2 बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज आपके पास लाइक जैसे मेरे केस में मैंने क्लाइंट दिया, रियल एस्टेट का क्लाइंट आपको दिया, बिकॉज हमारे फ्रेंचाइजी में क्या है, सारा कस्टमर एक्विजिशन हम ही करके देते हैं, कस्टमर हम एक्वायर करते हैं और अपने फ्रेंचाइजी को देते हैं, उनको हंट नहीं करना होता है। सो वो जो डेटाबेस है, दैट डेटाबेस यू कैन यूटिलाइज इन अदर फ्रेंचाइजी फॉर सेलिंग अदर फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट। तो एक डेटा हुआ और 2 कंपनी के ऊपर वो यूज हो सकता है, दो कंपनी का प्रोडक्ट सेल करने के लिए यूज हो सकता है। So that is a second thing, and I'm again saying, well, every time I'm saying experienced team and an experienced team. Yeah. 3E you can say. What you are talking 3M, I'm saying 3E, 3EP. 3M and 3E can be available in this bouquet franchise. तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ रेज किया है विवेक जी। सेम रिसोर्सेज मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए, सेम डेटा और सेम क्लाइंट्स कैन बी यूजफुल फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर सेलिंग। So thanks to all panelists. Now we are taking few questions. काफी questions हमें receive हुए हैं आज. So I am taking first questions. This is from Hanish Sinha. इनका question है, is it possible to start a consultancy business in agri warehousing sector on a franchise basis? How to proceed for the start? कोई लेना चाहेगा इस question को? Any panelist would like to answer this question? Gautam sir, this is related to you, this agri warehousing business. Yes, आप जरा दोबारा आप इनका क्वेश्चन है, हनीश सिन्हा है जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है हमारे से। इज इट पॉसिबल टू स्टार्ट अ कंसल्टेंसी बिजनेस इन एग्री वेयर हाउसिंग सेक्टर ऑन अ फ्रेंचाइजी बेसिस? क्या कोई ऐसा मॉड्यूल है जहां फ्रेंचाइज बेसिस पे एग्री वेयर हाउसिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो हाउ टू प्रोसीड फॉर दैट स्टार्ट? नहीं, इसके ये स्टार्ट हो सकता है। देयर इज अ वाइड नीड ऑफ दिस कंसल्टेंसी इन दिस सेगमेंट, और हमारा देश इतना बड़ा है कि हम पूरे देश में भी वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है, इवन रूरल लेवल पे भी रिक्वायरमेंट है। लोग बनाने से लेके और उसको रन करने तक के लिए लोग इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, बट दे डोंट हैव एनी आइडिया कि भाई मुझे कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, वेयर हाउस बनवाने के लिए मुझे फैसिलिटीज कहाँ से मिलेंगी। नाबार्ड, जैसे नाबार्ड की एक योजना है ग्रामीण भंडार योजना, तो लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास लैंड है। तो ऐसे में यदि आप गाइड कर सके, हर कमोडिटीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट है वेयर हाउसिंग की, यस इट कैन बी देयर, इट कैन बी पॉसिबल एंड इट इज। मुझे जो अभी हनीश सिन्हा जी ने जो बात कही है, मैं तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन उनकी बात से लग रहा है कि देयर इज ह्यूज पोटेंशियल इन दिस सेगमेंट फॉर द फ्रेंचाइजीज। If you allow, हनीश सिन्हा जी बात भी करना चाहते हैं, so can we allow him to talk? Would you like to answer his questions? हनीश सिन्हा जी को मैं शायद जानता हूं, क्योंकि ये कभी शायद रिलीजियर में भी रहे हैं, और so I'll allow him to talk. हाँ, NBSC में he knows me personally, he is on LinkedIn also. Hanish ji, you are live now. Can you ask your question, please? Yeah, hi, good afternoon. Hey, Hanish Sinha. Yes, yes. Gautam sir, you are very right, sir. You know me very well. I was in Raleigh at that time. Yes, yes. So I can. This world is so small. So Hanish ji, can you please go ahead with your question? See, actually, I was basically looking to start an agri warehousing consultancy, basically. Since I'm right now working for around 10 years plus in agri warehousing only. Now I have to use this knowledge basically to impart knowledge to other groups which are so very much interested in investing these areas. On a private basically. Right now I am starting to just go off from the jobs and start a private consultancy. Gautam ji, please address his question. Gautam ji, are you with us? Hanish ji, ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल, और डायरेक्शन मैं कभी सोचा भी नहीं था, एंड इट इज हाईली रिक्वायर्ड। साहब मेरे पास लैंड है, मैं क्या करूं, या आप कहो तो गोदाम बनवा दूं, आप कहो तो कुछ और कर दूं,
हमारे पास जमीन खाली पड़ी है, हम लोग शहर में रहते हैं, हम खेती बाड़ी नहीं, मतलब देयर आर सो मेनी क्वेरीज आर देयर एंड पीपल कैन मूव इनटू दिस सेगमेंट। और आप चूंकि वेयर हाउसिंग में से जुड़े हैं, मैं भी वेयर हाउसिंग से जुड़ा हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड कितना बड़ा गैप है हमारे देश में वेयर हाउसिंग का। तो it can happen and it is the good idea that you can start in that and your franchisee can be offered with the bouquet franchisee also। आप सिर्फ एक ना लेके चले, दो चार चीजें लेके चले and you can join the people with the who are offering the bouquet franchisee। जैसे अभी हमारे एक विवेक जी बता रहे हैं कि उन्होंने रियल एस्टेट में शुरू किया, तो हाउसिंग लोन भी शुरू कर दिया। तो आप वो कंसल्टेंसी में आप भी वेयर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन का करिए, आप नाबार्ड्स के साथ एसोसिएट होके कर सकते हैं। तो और उनको साथ में आप लोन के लिए भी सपोर्ट कर सकते हैं कि नाबार्ड से लोन दिलवा। But there are so many possibilities are there and you can run the franchise across the country, not in particular segment or particular area। Right, sir. Thank you, Gautam sir. Thank you, Hanish ji. I Thank hope you, you got an answer of this. Yeah. Thank you. Thank you. The another questions I am taking. His name is Suhas Desai. How much profit margin in franchise business? So I request Ashish ji to please address this question. क्या profit margin percentage हम देख सकते हैं franchisee business में? आशीष जी। जी देखिए, जो प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड होता है वो आपके डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की प्रोडक्ट बेच रहे हैं एंड हाउ इज द वॉल्यूम ऑफ इट। So I think rather than checking the profit margin, return on investment is a better term that you should utilize। कि मैंने टोटल मिला करके 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया, तो हाउ मच आई एम एबल टू मेक पर मंथ। And the revenue, the margins are different from things like real estate is a very high average margin per transaction product। एक ही घर बेचते हैं तो I have seen that people are making average of 1.5 lakh rupees in a single house sales। And on the contrary, आप जब एक FMCG प्रोडक्ट में जाते हैं तो 10 to 15% of margin is considered very good, but पैसा कम बनता है क्योंकि थोड़ी सेल ओवरऑल वॉल्यूम सेल्स का थोड़ा कम होता है। तो rather than going for this margin thing, you should go for return on investment thing। जिस on investment आप अपना भी जोड़ें और आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उसमें, उसे भी जोड़ें। थैंक यू आशीष जी। आशीष जी, मेरा सवाल है कि जो ये आप बुके फ्रेंचाइज बात कर रहे थे, उसमें हम कितना परसेंटेज मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक सस्टेनेबल, इन दी टर्म्स ऑफ फिगर में बात कर रहा हूँ जी। क्या फिगर एक्सपेक्ट कर सकता है हमारा? सपोज किसी ने 15 लाख लगाया, 20 लाख लगाया एंड देन ही स्टार्टेड फ्रेंचाइज, बुके फ्रेंचाइज लिया, तो क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगी उनकी कि अगले 6 महीने में मुझे क्या रिटर्न्स आएंगे, 1 ईयर में क्या आएंगे? थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, जब हम बुके फ्रेंचाइजी की बात करते हैं तो बुके फ्रेंचाइजी इज ए मॉडल दैट इज डेवलप्ड कि लोगों को रेवेन्यू और प्रॉफिट्स और फास्टर आए। जो चीज एक साल में आपका ब्रेक इवन आ रहा था, आपने 15 लाख रुपए लगाकर फर्स्ट 15 लाख ब्रेक इवन की, आपने 15 लाख रुपए लगाए, वो 15 लाख रुपए आपके पास वापस आ गए। इसके लिए आपको एक साल लग रहा था। आई थिंक इन बुके फ्रेंचाइजी यू कैन कट इट शॉर्ट टू 8 मंथ्स। तो आपका जो ब्रेक इवन है वो आपका 8 महीने में आ जाएगा। लेटर से 15 लाख रुपए लगाकर आप अगर आप पूरे अपने ईमानदारी से मेहनत करते हैं, सही प्रोसेसेस चलाते हैं, तो विद इन 8 to 9 months यू एट मैक्स 6 to 8 months आई वुड से यू कैन डू ब्रेक इवन। देन आप उस पर प्रॉफिट बनाने शुरू कर सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी 10% ऑफ द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने 15 लाख रुपए लगाए, तो आई थिंक यू कैन स्टार्ट आफ्टर 6-7 months यू कैन स्टार्ट विद 1.5 लाख रुपीज ऑफ अर्निंग and then sky is the limit। it is the average thing I am talking about कि average effort हुआ, average processes follow किए गए, average customers आए, तो आपको 10 to 15% का रिटर्न पर मंथ। इसका कोई बेंचमार्क भी है? इंडस्ट्री बोलता है कि फ्रेंचाइज बिजनेस में एक बेंचमार्क होता है कि ये परसेंटेज अगर आ रहा है फ्रेंचाइजी में, तो दैट फ्रेंचाइजी और बुके फ्रेंचाइजी इज अ वंडरफुल थिंग। ऐसा कोई एनालिसिस भी है हमारे साथ जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, ऐसे एनालिसिस भी है। देखिए, यूएस में 60% जो रिटेल बिजनेस है वो पूरा फ्रेंचाइजी पर डिपेंडेंट है। और वहाँ की जब हम फ्रेंचाइजीज को एनालाइज करते हैं, जैसे आपकी मैकडोनल्ड है, सबवे है, तो दीज आर हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस कि आपने 2 करोड़ रुपए लगाए इन इंडियन टर्म्स, तब आपका बिजनेस शुरू हुआ। इसका ब्रेक इवन आने में नॉर्मली दे फील दैट अराउंड 3 years आपको ब्रेक इवन लाने में लगता है। और उसके बाद आप अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर 2 से 3% पर मंथ का आप प्रॉफिट बना सकते हैं।
जब इसका एक सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि नॉर्मल ब्रेक इवन में 2 इयर्स लग रहे हैं इन इंडिया आल्सो, और उसके बाद जो आप पर मंथ पैसा बना पा रहे हो 5% ऑफ रिटर्न टोटल ऑन कैपिटल। बना पा रहे हैं। ओके, बट इन दिस बुके फ्रेंचाइजी वी ट्राई टू डू इट फास्टर, बट ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऑलरेडी ऐसे बिजनेसेस अवेलेबल हैं जो कि लीन बिजनेसेस हैं जिनमें कम पैसा लग रहा है, पूरी दुकान नहीं खोलनी, बहुत बड़ा आपको कोई सेटअप टेक नहीं एनेबल्ड करना है, बिजनेस। आप जल्दी से बिजनेस शुरू करके कर सकते हैं। तो आई थिंक इन दिस बुके फ्रेंचाइजी आई वुड से दैट 6 to 8 months में आप ब्रेक इवन कर सकते हैं और उसके बाद 10 to 15% की आप प्रॉफिट बनाना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू आशीष, दिस इज अ वंडरफुल इनसाइट, बिकॉज सबसे पहला सवाल ये होता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट इतना होगा तो मैं रिटर्न कैसे आऊंगा। तो आई थिंक आज आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को पकड़ा है यहाँ पर। विवेक जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा सेम जो ये बुके फ्रेंचाइजी का जो प्रॉफिटेबल मार्जिन वाला बिजनेस है, क्योंकि आई आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्लोज दैट आप भी बुके फ्रेंचाइज में शामिल हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अटेंडीज को कि कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस हो रहा है और क्या परसेंटेज निकल रहे हैं अभी, और अगले, जैसे आशीष जी ने कहा कि 8 to 12 मंथ्स में ब्रेक इवन आने की पॉसिबिलिटी दिखती है इसमें, और आगे सस्टेनेबल एक प्रॉफिट 15% 20% का आने का लगता है, विच इज अ हैंडसम प्रॉफिट। 15 लाख लगा के अगर किसी आदमी को 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए अगर महीने का छूट रहा है, तो आई होप दैट्स अ वंडरफुल बिजनेस। तो आप क्या बताना चाहेंगे विवेक जी इसमें? सो जितेन, मैं थोड़ा जरा ज्यादा बड़े मार्जिन बिजनेस में बात करता हूँ हमेशा। ये मेरा और आशीष का हमेशा क्लैश रहता है। आशीष इज टॉकिंग एंड बोल लाइक आई वांट पीपल टू अर्न 3 लाख रुपीस पर मंथ, है ना। अगर वो ज्यादा काम करेंगे मेरे साथ में तो वो ज्यादा पैसा बनाएंगे। इट इज वेरी 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 क्लियर ऑन दैट पार्ट। सेकंड, देखो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कैसे करता है। जैसे मैं आपको बार बार वही चीज बता रहा हूँ कि आपने कॉमन रिसोर्सेज शेयर किया। प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट बेचने से मत समझो। आपकी जो रिकरिंग कॉस्ट है वो काफी कम हो गई। ऐसा नहीं है ना आपकी रिकरिंग कॉस्ट जो अकेले एक बिजनेस को चलाने में थी आज 2 बिजनेस को चलाने में 1 हो गई है। तो आपकी जो पर मंथ की जो कॉस्ट है वो काफी कम होती जा रही है इन कंपैरिजन। तो आपके ऑब्वियसली आपके मार्जिन बढ़ जाएंगे। अगर आपकी रिकरिंग कॉस्ट बहुत हाई होगी किसी भी चीज को रन करने के लिए तो आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे। सिर्फ मैंने अगर 10 रुपए का माल बेचा और 4 रुपए इसमें बनाया तो 4 रुपए इज नॉट योर प्रॉफिट। आपके एक्सपेंसेस जो पर मंथ एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो आपको शक करके उस 4 रुपए को 1 रुपए में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लोग बुके फ्रेंचाइजी में ऐसी मेथोडोलॉजी डेवलप करते हैं कि जिससे उसकी रिकरिंग कॉस्ट कम रहे तो उसका जो मार्जिन इंटैक्ट रहे। हमेशा 4 रुपए है तो वो 3.5 रुपए हो, ऐसा ना हो कि वो 1 रुपए आ जाए। ओके, तो विवेक जी, मेरा सवाल एक और हमारे अटेंडीज पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप उसका आंसर दें, बिकॉज इट इज वेरी मच रिलेटेड टू योर बुके। हाउ शुड आई इंट्रोड्यूस माय न्यू प्रोडक्ट whose marketing is already there in the market, and how people like to prefer my product as compared to my competitors? So can we derive these questions in a that way that he will get his answer as well? देखो, अगर सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, जो एक कॉम्पिटिटर बेच रहा है एक आप बेच रहे हो, तो उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने की आप क्या वैल्यू एडिशन उसमें करके बेच रहे हो। वैल्यू एडिशन का मैं जैसे सबका आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देयर इज अ कंपनी कॉल्ड डिजी यूनिवर्सिटी। डिजी यूनिवर्सिटी क्या है, 990 रुपीज में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अवेलेबल कराती है। बट और भी कई लोग हैं जो सेम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स 990 में कराते हैं। बट उस कंपनी ने क्या किया है, वैल्यू एडिशन करके दिया है कि आपको साथ में इंटर्नशिप भी मिलेगी। अब वो प्रोडक्ट से प्राइसिंग से अलग हो गया। आपको इंटर्नशिप मिलेगी, आपको डाउट क्लासेस मिलेंगे, आप साथ में मार्केटिंग क्लासेस लर्न कर सकते हो। तो उन्होंने वैल्यू एडिशन करके दिया है, सिर्फ प्राइसिंग पे फाइट नहीं कर रहे हैं। प्लस सेकंड जो आप कर रहे हैं, कहने की मेरा जो तरीका है कि अगर वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे बेच रहा है तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज करो ताकि आप नए कस्टमर एक्वायर कर सको जो वो कस्टमर उसके पास में नहीं है। Wonderful, wonderful. So I hope our attendees has got the answers of their questions. So today we are, summing up this session, webinar series 6, and we have talked about wonderful ideas about profitable running franchise business. तो आज की जो एक समरी है मैं बस अपने attendees को देना चाहूंगा, and then we'll be closing this session. The important aspect we have discussed well while starting: passion, fundraising, long-term scalability, sustainability. गौतम जी ने बात करी टेक बेस्ड बिजनेस की, एंड इंटीग्रेटेड मार्केट, which is a very important and very unique buzzword nowadays. So and then आशीष जी ने 4 चीजें हमें समझाई हैं आज, which is a strategic fit, financial fit, market fit and operational fit. So these fits are very much important for starting a business. And then the local trends, economy,
विवेक जी ने बहुत बताया कि एक्सपीरियंस टीम एंड टेक्नोलॉजी के बारे में वो बहुत जोर दे रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर रनिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। एंड एक समरी में आशीष जी ने मुझे बताया कि बुके फ्रेंचाइज के अंदर जो हमारा ब्रेक इवन का पॉइंट होता है, नॉर्मल फ्रेंचाइजी में जो हम बात करते हैं कि ये प्रॉफिटेबल कब होगी, कब ब्रेक इवन आएगा, कब सस्टेनेबल आएंगे, तो उनका ये कहना है, उनका एक व्यू है कि 12 मंथ्स से शॉर्ट होके वो 8 मंथ हो जाएगा और 12 मंथ के बाद में एक सस्टेनेबल 15% का मार्जिन उनको लग सकता है। एंड विवेक जी इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन दैट पार्ट। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट 15%, ही इज टॉकिंग ऑफ 30% बाय गिविंग experience training and focusing on value addition and digitalization of these products. So I think this session has given up wonderful ideas, and all the panelists, including Gautam sir, has given tremendous response to this R&D fact. जो ये R&D की बात की इन्होंने, सब लोग भूल जाते हैं कि हमें प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले R&D करना चाहिए। तो उन्होंने बात जोर दिया है री इन्वेंटिंग द व्हील्स, कि जो इन्वेंट ऑलरेडी हो चुका है उस पर हमें फोकस करना चाहिए व्हेन वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। देन R&D जो ऑलरेडी हो चुकी हैं उनको हम कैरी फॉरवर्ड करें, विच इज अ प्रूवन मॉडल। So I hope this session has given a value addition to all aspect for choosing a right franchisee and running a profitable business. So thank you all the panelists. I thanks all my participants, all attendees who has attended this, and anybody after this also they have any queries, and if they wanted to speak to any panelist, please write us a mail. My email ID is Jitendra JITENDRA @anexpoinfomedia.com, and they can reach to us 8287933633. I'll repeat, it's 8287933633. We can definitely respond to your questions. We will assist you to choose a right franchise. And yes, the new product which has come up in the market, Bouquet franchise, we are delighted to answer your all the queries related to that. Thank you all the panelists, Gautam sir, Vivek sir, Ashish ji. Thank you, thanks a lot coming over.